Good morning. Good morning, ma'am. So in the previous lecture, we have started the next function, that is characteristic function. So you are given any set E and A is any subset of E, then the characteristic function of A, this is an indicator function which says that whenever your x belongs to A, the value is 1, and if does not belongs to A, the value is 0. So based on these, we are doing some properties that the characteristic function of empty set, this is always 0, right? Because it will be 1 when your x belongs to the empty set. When your x does not belong to the empty set, it is 0. So since your x is a member of E, in this case it means x does not belongs to phi, means x belongs to E. So for each x belonging to A, the value of the function is 0 because there is no member in the empty set. So किसी भी point के लिए 1 नहीं आएगा. So the value of this characteristic function of the empty set, it will be 0. Similarly, the characteristic function of the whole set, this is always 1, because now here you are having E set. For every x belonging to E, this value is 1, right? So you get the characteristic function of the whole set is 1. The third property is whenever A is a subset of B, this implies that the characteristic function of A, this values are less than or equal to the characteristic function of the value of the set B. Now you can easily see this thing also. Since your A is a subset of B, तो आपके पास characteristic function जो है A of over A क्या है? When your x is belonging to A, its value is 1, otherwise it is 0. And the characteristic function over B, this is 1 when your x is belonging to B, and it is 0 when your x does not belongs to B. Now since your A is a subset of B, so for all values of, since your each value of A is a member of B also, because A is a subset of B, this point is clear. Since A is a subset of B, so B के हर एक मेंबर के लिए जहां पर B और A आपस में coincide कर रहे हैं, the value is 1. Moreover, B में और भी पॉइंट हो सकते हैं अदर देन A जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1. Clearly the characteristic function of A will be less than equal to the characteristic function of B. This point is clear. Is it clear to all of you? Since A is a subset of B, तो characteristic function over set A, जिन जिन पॉइंट्स के लिए A पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, क्लियरली B के लिए भी वो 1 है, but there may exist more elements in B where the function attains 1 value, because B is a superset of A. This point is clear. Yes, ma'am. So clearly characteristic function of A जो है वो आपके पास less होगा, because उसमें कम values के लिए 1 मिलना है, otherwise rest 0 ही मिलना है. Okay, so this is less than or equals to the characteristic function of B. Now the next property is the characteristic function of A union B is the characteristic function over A plus over B minus over A intersection B. Now just see, let's suppose ये आपके पास E set है, ये कोई A है, ये आपके पास कोई B है. Now characteristic function over A, it means for all the elements of A, the value of the function is 1.
एंड रेस्ट ऑल एलिमेंट्स के लिए वैल्यू क्या है, 0. Similarly, the characteristic function over b means for all the values of b the function attains value 1 and rest पे आपके पास फंक्शन का वैल्यू है 0. a यूनियन b का क्या मतलब है, दिस सेट a सेट एंड दिस. सो ये जो कंप्लीट आपके पास ये बन रहा है, इस सेट के लिए अगर x आपका इसको बिलोंग कर रहा है तो वैल्यू 1 है, रेस्ट ऑल के लिए वैल्यू क्या है, 0. एंड a intersection b means this common part, this common part. For this common part the function attains value 1, rest all पे 0, right? So now just see what is the value of this characteristic function over a union b. This will be what, so you get whenever your x belongs to a or x belongs to b, it always attains value 1. रेस्ट ऑल पे आपके पास वैल्यू क्या है, 0, राइट? सो x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, इन पे वैल्यू है आपके पास 0. नाउ क्लियरली अगर आपका x a को बिलोंग कर रहा है तो भी इस फंक्शन की वैल्यू 1 है, अगर आपका x b को बिलोंग कर रहा है तो भी आपके फंक्शन की वैल्यू 1 है. ओके, तो आपके पास 2 टाइम्स ये पॉइंट्स जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो 2 बार आ जाएंगे. 1 आपका इसके लिए भी आ जाएगा ए वालों के लिए जो कि कॉमन पॉइंट थे बी के साथ, 1 आपका इसके लिए भी आ जाएगा जो कॉमन पॉइंट है बी के लिए, राइट? तो ये 1 + 1 दे देगा फॉर द कॉमन पॉइंट्स. तो इसलिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फॉर द कॉमन पॉइंट्स एंड वी गेट द वैल्यू 1 for the points which lying in A as well as lying in B. So we have to subtract this thing. This point is clear? ना मतलब we can visualize it, but इसको लिखेंगे कैसे? You can say this thing. मान लो हमें अलग अलग केसेस से इसको we can prove it. मान लो कि x A को बिलोंग कर रहा है but x B का मेंबर नहीं है. Then what is the value of your left hand side? इसकी वैल्यू 1 आएगी क्योंकि एक सेट में आ गया, A यूनियन B में आ गया. अगर A में है तो पॉइंट आपका A यूनियन B में आ गया. Yes ma'am. So the value of this function will be 1. Yes ma'am. राइट? अब राइट हैंड साइड देखो, आपका x b को बिलोंग नहीं कर रहा, इट मीन्स ये 0 है. अगर b को ही बिलोंग नहीं कर रहा तो क्लियरली इंटरसेक्शन में नहीं है, ये भी 0 है. एंड इसकी वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि a को बिलोंग कर रहा है. तो 1 + 0 - 0 दोनों तरफ सेम आ गई, राइट? सिमिलरली अगर आपका x b को बिलोंग कर रहा है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, सेम वे में आ जाएगा. Yes ma'am. थर्ड केस क्या बचा, व्हेन योर x इज बिलोंगिंग टू a एज वेल एज बिलोंगिंग टू b, वो दोनों को बिलोंग कर रहा है. अगर दोनों को बिलोंग कर रहा है तो यूनियन में तो फिर आ गया, यहाँ पे वैल्यू 1 नहीं आया, यहाँ पे भी 1 आ गई, यहाँ पे भी 1 आ गई, राइट? तो हमें ये सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा जहां पर आपके पास कॉमन पॉइंट्स के लिए था, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, दोनों के अंदर है, कॉमन पॉइंट्स में भी है. सो देन वी गेट, ये आपका कैंसिल हो गया, वी गेट राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 1. सो योर लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज दैट राइट हैंड साइड. सो जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो बेसिकली 2 बार आपके हो जाएंगे, इसके लिए भी और इसमें भी, इसलिए हमें उन कॉमन पॉइंट्स के फंक्शन को माइनस करना पड़ेगा. एक्चुअल में वी आर गिविंग द मेंबरशिप ऑफ दिस सेट, हम मेंबरशिप बता रहे हैं कि अगर तो x आपका a यूनियन b में है तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 है. तो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, या तो x a में है या b में है या दोनों में है. अगर a में है तो b में नहीं है तो ये आपके पास होल्ड हो जाएगा, अगर b में है और a में नहीं है तो होल्ड हो जाएगा. बट अगर इन दोनों के अंदर हुआ तो कॉमन पॉइंट्स 2 बार आपके रिपीट हो जाएंगे, इसमें भी रिपीट हुआ, इसमें भी रिपीट हुए. तो इसलिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द कॉमन पॉइंट्स फंक्शन वैल्यू.
राइट। सो इसलिए हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये क्लियर है? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। और हमें देखने से भी पता चल रहा है ए यूनियन बी में ही आपके पास ये पॉइंट्स आ रहे हैं। ए में ये वाले पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, बी में भी ये वाले पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है वो दो बार आपके अक्कर कर रहे हैं। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इंटरसेक्शन फ्रॉम ए एंड बी। तो आपके पास ए यूनियन बी, ए यूनियन में बी में तो एक ही बार आ रहा है ये वाला पॉइंट्स जो कॉमन थे। अगर ये डिसजॉइंट होते, अगर ये सेट डिसजॉइंट होते तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं था, तो ये आपके पास एम्प्टी बनेगा। एम्प्टी सेट की कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 होती है एंड यू गेट दीज टू आर सेम if they are disjoint. Clear? This यस point is मैम। clear? Yes. यस मैम। Clear है ये? That the characteristic function of A union B is the characteristic of A plus characteristic of B minus characteristic of A intersection B. But if A and B are mutually disjoint, then this value will become 0 and you get this is equal to this. Right? Now the next property is the characteristic of A intersection B. This can be written as characteristic of A into characteristic of B. And again you can prove this. मान लो मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की है, योर x belonging to A intersection B. X belonging to A intersection B means x is in A as well as x is in B. So that means the value of characteristic function of over A will be 1 and characteristic of B will also be 1 because both are the members of A and B. So ये फंक्शन की वैल्यूज 1 आएंगी. This point is clear? If your x is a member of A union B, A intersection B, इसका मतलब x A में भी है और x B में भी है. तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ओवर A ये वैल्यू 1 देगा और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ओवर B ये भी 1 देगा. तो आपके पास राइट हैंड साइड में देखो क्या आ गया, 1 into 1 is 1. और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ गई, सिंस x is a member of A intersection B, the value is 1. दोनों सेम आ गई. So your left hand side is same as that your right hand side. केस दूसरा क्या हो सकता है, योर x is not a member of A intersection B. If x is not a member of A intersection B, it means neither x belongs to A nor x belongs to B. If x is not a member of A as well as not a member of B, it means characteristic over A will be 0 as well as characteristic over B will be 0. And their product is also 0. So your right hand side is 0, left hand side is already 0 because your x is not a member of A intersection B. So both are same. This point is clear? Clear है ये बच्चे? यस मैम। Now one case बचा right hand side की तरफ से. मान लो कि x A के अंदर है but B के अंदर नहीं है. तो आपका देखो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, द कैरेक्टरिस्टिक ओवर A इंटू कैरेक्टरिस्टिक ओवर B. A में है इसकी वैल्यू 1 आई, B में नहीं है इसकी वैल्यू 0 आई, तो 1 into 0 will be 0. And what will be your right hand left hand side, the characteristic of the function over A intersection B. Now since your x is a member of A but not a member of B, clearly x does not belongs to A intersection B. And since x is not a member of A intersection B, so this value will be 0 because your x is not a member of A intersection B. So in each case, either x belongs to A or does not belong to B. It does not belong to A or belong to B, और दोनों को ही बिलोंग नहीं कर रही. सभी केसेस में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 वैल्यू देगा.
ओनली आपके पास वन वैल्यू आएगा व्हेन योर x इज अ मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, मींस x इज इन a एज वेल एज इन b, तभी लेफ्ट साइड की भी और राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 आएगी. So we can write characteristic of A intersection B as characteristic of A multiplied with characteristic of B. Clear है? This point is clear? Yes, ma'am. Yes. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Next property है the characteristic function of A complement will be what? देखो क्या वैल्यू बनेगी. ये मान लो मेरा E था, ये मेरा A है. क्या वैल्यू आनी चाहिए? बाय डेफिनेशन ये क्या है? It will be 1 when your x is not a member of A, means A complement का member है, and when your x, or you can say x is a member of A complement, and x does not belong to A complement, or you can say x is belonging to A, then its value is 0. So we can write the characteristic function of over A complement as 1 minus the characteristic over A. Again you can prove the left hand side is equal to right hand side. आपके पास left hand side की वैल्यू ये आ रही है, which is अगर x आपका A कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है तो वैल्यू 1 है, अगर x A कॉम्प्लीमेंट का मेंबर नहीं है तो वैल्यू 0 है, right? That will be same as that. You can put this value to be 1. 1 आपकी कहाँ पर होती है? When your x is a member of the whole set E. So you can subtract those points where your x is a member of A and x does not belongs to A. Complement का मतलब क्या है? It belongs to E minus A, right? तो E वाले members हैं आपके पास 1, A वालों के लिए भी है 1, but if you subtract these two you get it is 0 for A. Now just see क्या आया आपके पास. What you want to show that this is equal to your right hand side. So wait a minute. Right hand side के लिए आपको क्या शो करना है? अगर x आपका A कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है, इसका मतलब x A का मेंबर नहीं है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ओवर A विल बी 0. ये 0 आना चाहिए, ठीक है? तो आपने यहाँ पे पुट किया 1 माइनस 0 गिव्स यू 1, और यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? 1 फॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x बिलोंगिंग टू A कॉम्प्लीमेंट. तो लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया. Similarly, when your x does not belong to A complement, it means your x is a member of A. It means the characteristic function over A will be 1. So substitute this value in the right hand side, you get 1 minus 1 0. और लेफ्ट साइड में भी आपके पास क्या आ रही है? 0 when your x is not a member of A complement. So these two are same. So it means the characteristic function over the complement of any set can be written as 1 minus the characteristic of the function of that set. Clear है? Yes, ma'am. और आप ये कह सकते हो the characteristic over A plus over A complement is 1. ये 1 होगा, or you can say it will be characteristic over the whole set E. एक ही बात है. मैम जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये है ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए, उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए 1 कैसे आया? अगर x आपका A कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा तो इस साइड आपके पास 0 बनेगा,
कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, अगर x इसका मेंबर है तो वैल्यू 1 है, अगर x इस सेट का मेंबर नहीं है तो वैल्यू 0 है। तो ये लेफ्ट साइड की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर x आपका a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसका मतलब वो a में होगा, और अगर a में है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, 1। गेटिंग माय पॉइंट, यस मैम। राइट। और इवन आप इसको इस पार्ट से भी कर सकते थे, सिंस E कैन बी रिटन एज A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, और अभी हम करके आ रहे हैं the characteristic of A union A complement will be the characteristic of A plus characteristic of A complement minus characteristic of A intersection A complement, but A intersection A complement 5 होगा तो वो 0 आ गया। This is your characteristic of E. Characteristic over whole set will be 1, always 1 होगा। So आप इनमें से किसी एक को 1 माइनस कर सकते हो, तो यही बन जाएगा आपके पास। So you can use this union property also to prove this one. Clear? Clear है ये? Yes, ma'am. The next property is, if you are having a sequence of disjoint subsets of E, let's suppose AI जो है ये disjoint subsets हैं E के, right? Then the characteristic function over A, where A is the union of all these AIs, it will be what? It is a summation over A. सेम चीज है जैसे अभी हमने किया A यूनियन B, इसमें सिर्फ 2 सबसेट लिए थे, तो हमने कहा कि अगर ये डिसजॉइंट होंगे तो यू कैन राइट एज सम। अब इसमें 2 से ज्यादा आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस है और या काउंटेबल सीक्वेंस है डिसजॉइंट सेट्स की, देन यू कैन राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओवर द यूनियन ऑफ AIs, that will be nothing but the summation of characteristic over each AI. Clear? Again आप इसको प्रूव कर सकते हो that your left hand side is same as that right hand side. इसमें possibilities क्या हैं, A आपका जो है वो union of AI है, तो आपका X किसी ना किसी X A में है, इसका मतलब at least एक AI में है, और at least क्या किसी एक AI में ही होगा, क्योंकि ये सारे disjoint हैं। disjoint हैं तो common point तो हो नहीं सकते। अगर X आपका A में है तो किसी एक ना एक AI में होगा, ओनली एक AI में होगा X आपका। जिस भी AI में होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी, और A में बिलोंग कर रहा है इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 1। रेस्ट पे क्या आएगी, 0, तो 1 प्लस 0 0 0 1 ही दे देगा आपको राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। सो इट बोथ आर सेम। दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. The last property over the characteristic function is that the characteristic function of A minus B set, it will be the characteristic of A minus the characteristic of A intersection B. Again you can prove it, you can consider the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में अगर x आपका a माइनस बी का मेंबर है तो वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक a माइनस बी की 1, राइट? और अगर ये इसका मेंबर नहीं है तो इस फंक्शन की वैल्यू है 0। अब देखो आप राइट हैंड साइड, इफ योर x इज अ मेंबर ऑफ a माइनस बी, इसका मतलब x a को बिलोंग कर रहा है, बट x जो है वो b में नहीं है। x is a member of A but x does not belong to B. This point is clear? Yes, ma'am. और अगर x B में नहीं है तो क्लियरली x A इंटरसेक्शन B में भी नहीं है।
ओके तो आपके पास देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या बनेगी, ये तो वैल्यू देगा 1 बिकॉज x इज अ मेंबर ऑफ a एंड सिंस योर x इज नॉट अ मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये वैल्यू देगा 0। तो आपके पास राइट हैंड साइड में भी क्या आ गई 1, इधर भी 1 आई, इधर भी 1 आई। Now consider the next case when your x is not a member of a minus b. When your x is not a member of a minus b, इस साइड आपके पास 0 है और देखो इधर क्या आया, since your x is not a member of a, right, x a का मेंबर नहीं है एंड x किसका मेंबर नहीं है, x जो है वो b कॉम्प्लीमेंट का मेंबर नहीं है। a माइनस बी इज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो ना तो a का मेंबर है ना ही b कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है, इसका मतलब b का मेंबर है। So whenever your x is not a member of a but a member of b, इसका मतलब क्लियरली a इंटरसेक्शन b का मेंबर भी नहीं है। दिस पॉइंट इज क्लियर, क्योंकि a में ही नहीं है तो a इंटरसेक्शन b में आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू भी आई 0 और a में भी नहीं है तो इसकी वैल्यू भी आई 0। 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0, यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, यही राइट साइड आ गई। So either x belongs to a minus b or does not belongs to a minus b, both sides आपकी जो है वो सेम होंगी। So we can write the characteristic function of a minus b as the characteristic function of a minus characteristic function of a intersection b. This point is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the next result, this is important. This says that let E be a measurable set, then the set A, which is subset of E and its characteristic function, are simultaneously measurable or non-measurable. So this is important property, important result. This says that कि E जो डोमेन सेट है वो तो हमारा मेजरेबल है। अब हमने कोई सबसेट पिक किया E का, तो ये जो सबसेट है अगर तो ये सबसेट मेजरेबल होता है फिर तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी A का मेजरेबल आएगा, और अगर ये सेट नॉन मेजरेबल होता है तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी नॉन मेजरेबल होगा, और बोथ वेज इट इज ट्रू। If your characteristic function over some set is non-measurable, it means that set is non-measurable, right? So this thing holds simultaneously, that both the set A as well as its characteristic function, they are measurable or non-measurable, right? We can prove it. Let alpha be any real number. So what we want to show, हमने इस फंक्शन को देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ग्रेटर देन अल्फा। नाउ जस्ट सी, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की दो ही वैल्यूज हैं, या तो ये 1 है या 0, डिपेंडिंग ए को बिलोंग कर रहा है और नहीं कर रहा। अब हम अल्फा पे कंडीशंस ले रहे हैं, तो मुझे बताना क्या वैल्यूज बनेगी। मान लो अल्फा मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया, 1 या 1 से बड़ा लिया, तो मुझे वो पॉइंट्स निकालने हैं ई के जहां पर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यूज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है अल्फा से। तो कौन से पॉइंट्स आएंगे? ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। यस, कोई भी पॉइंट नहीं आया क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक वाले की तो वैल्यू या तो 1 है या 0 है। 1
से बड़ी तो कभी नहीं होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 तो कभी भी नहीं होगी, सो देयर इज नो पॉइंट, सो एम्प्टी सेट. दिस पॉइंट इज क्लियर. Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट केस है कि मान लो अल्फा आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो कौन से पॉइंट्स आएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाए अल्फा से? कौन से पॉइंट्स आएंगे? X जो बिलोंग कर रहे हैं A से. x बिलोंगिंग टू a वाले पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि उन्हीं पे फंक्शन की वैल्यू 1 है और वो आपकी ग्रेटर बन जाएगी अल्फा से, राइट? तो यानी a सेट आ गया. मैम ये सेकंड वाला पॉइंट दोबारा समझा दो. हमने कंडीशन ली अल्फा पे, इट लाइंग बिटवीन 0 एंड 1. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दोस पॉइंट ऑफ द डोमेन वेयर द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ओवर द a हैविंग द वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा, राइट? अल्फा जो है वो आपका 0 से बड़ा है बट लेस देन 1 है, 1 से छोटा है. तो कौन से पॉइंट ऐसे हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में जो 0 से बड़े हों और 1 से छोटे हों? कौन से पॉइंट्स हैं 0 से बड़े और 1 से छोटे? मैम 1 से छोटे भी तो नहीं है ना, एग्जैक्टली 1 है. यही वाले पॉइंट्स होंगे, सिर्फ यही वाले पॉइंट्स बने, क्योंकि ये जो 1 है वो आपका इस वाले अल्फा वाले 1 से बड़ा हो जाएगा, बिकॉज अल्फा आपका 1 से छोटा है. मान लो मैंने अल्फा हाफ लिया, हाफ इसके बीच में लाई कर रहा है. So we need to find out those point of the domain where the characteristic of the function over a is greater than half. कौन से आएंगे इसमें पॉइंट्स? ठीक है मैम, हो गया. All those points which are belonging to a, जो a को belong कर रहे हैं, यानी complete a set आ गया. And if your alpha is less than 0, अगर अल्फा लेस देन 0 है, मतलब 0 से भी छोटा, मान लो मैंने -1 माना, तो कौन से पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के विच आर ग्रेटर देन -1? -1 से बड़े कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सारे ही सारे आ गए. आएंगे. हाँ ए जी, को बिलोंग और ए डज नॉट, यानी ई सेट आ गया. ई सेट है. ठीक है. अब देखो ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल, ये तो दोनों हमें गिवन ही है. एम्प्टी सेट हमें पता है मेजरेबल होता है, ई जो है वो हमें गिवन है मेजरेबल है. बचा क्या? ए. अगर तो ए नॉन मेजरेबल हुआ तो ये फंक्शन बन जाएगा नॉन मेजरेबल, और अगर मेजरेबल हुआ सेट तो फंक्शन क्या बन जाएगा? मेजरेबल. तो यही हमने प्रूव करना है दैट द सबसेट ए एंड द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए both are simultaneously measurable or non-measurable. Clear है ये चीज? This point is Yes, clear. ma'am. यस मैम. If your a is measurable, then this function is measurable. If a is non-measurable, then this function is non-measurable. So this is very important that characteristic function, it depends on the set जिस पे आप डिफाइन कर रहे हो. अगर ये नॉन मेजरेबल होता तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ने भी नॉन मेजरेबल बनना था. ओके. इवन द डोमेन सेट मेजरेबल है, जो बड़ा सेट है आपका वो मेजरेबल है, फिर भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है जिस सेट पे हम डिफाइन कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा whether that set is measurable or not. ओके. क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट इज सिंपल फंक्शन. एक हमने स्टेप फंक्शन किया, फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, नाउ द नेक्स्ट इज सिंपल फंक्शन. ये जो है एक्सटेंशन है स्टेप फंक्शन की. स्टेप फंक्शन में क्या था? यू आर हैविंग अ डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी थी. आपने इस क्लोज इंटरवल ए बी को पार्टीशन किया था, फाइनाइट पार्टीशंस लगाई. each sub partition पे function जो है that attains a constant value, so that is your step function, right? simple function जो है that is an extension of step function. अब closed interval ab की बजाय हमें एक set given है e, domain set given है e. इस e के partition करेंगे with respect to disjoint sets.
हमने आगे पार्टीशन भी जो है ना सेट्स की फॉर्म में की इसकी, और ऑल दीज सेट्स आर डिसजॉइंट and measurable. So you are having a function rather defined on closed interval AB, it is defined on a set E, and this function is said to be simple function if we can partition this E set into finite disjoint measurable sets such that your E is the union of these EIs, right? And over each EI set the function attains value constant, right? Fx जो है it will be some constant AI for all x belonging to EI, और I vary कर रहा है 1 से n. So this is the definition of simple function. This is an extension of step function. Clear है definition simple function की? मैम एक बार रिपीट कर दो, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। जी कोई नहीं। स्टेप फंक्शन क्या है? इट इज डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। स्टेप में क्या था? यू डिवाइड द क्लोज इंटरवल ए बी इनटू फाइनाइट स्मॉल इंटरवल्स वेयर ऑन ईच सब इंटरवल द फंक्शन अटेन्स वैल्यू कांस्टेंट। फंक्शन की वैल्यू जो थी वो कांस्टेंट थी फॉर ईच x बिलोंगिंग टू द सब इंटरवल xi माइनस 1 xi। इसमें है इंटरवल्स। इंटरवल्स की बजाय अगर हम सेट्स ले लें, E मेरा एक सेट है मेजरेबल, and we can partition this E set into finite disjoint sets which are also measurable such that your E is the union of all these EIs, and if your function attain a constant value over each EI, हर एक सबसेट पे अगर फंक्शन अटेन कर रहा है वैल्यू कांस्टेंट, then this function is said to be simple function. Clear? So you can write down a definition of simple function. A function f going from E to R, it is said to be simple function if there is a finite disjoint class E1, E2 till up to En of measurable sets with the union of EI is E, and a finite set A1, A2 till up to An of real numbers such that function attains a constant value for every x belonging to EI and I varying from 1 to n. So जैसे हर सब इंटरवल पे आपके पास फंक्शन कांस्टेंट था, हर सेट पे अब फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम सिंपल फंक्शन कहेंगे। इट मींस जो स्टेप फंक्शन है वो आपका पर्टिकुलर केस हो गया, पर्टिकुलर एग्जांपल यू कैन से, स्पेशल एग्जांपल हो गया आपके पास सिंपल फंक्शन का, कि उसमें हमने EI जो है वो प्रिसाइजली इंटरवल ले लिए। दिस पॉइंट इज क्लियर? क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So another way to write down this function in the terms of characteristic function, वो क्या लिख सकते हो आप? You can write this fx as summation I varying from 1 to n ai into characteristic function over ei. And now just see how कैसे लिख सकते हो। अगर तो देखो x आपका ei को बिलोंग कर रहा है, फिर तो इस वैल्यू आनी है 1 इंटू ai आ जाएगा, और रेस्ट पे क्या आ जाएंगी 0, तो समेशन में ओनली एक ही बचेगा ai whenever your x belongs to ei,
मान लो x मेरा बिलोंग कर रहा है E1 को, तो फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए A1, यही है डेफिनेशन। योर फंक्शन शुड बी AI मीन्स A1 फॉर x बिलोंगिंग टू E1 के लिए। अगर E1 को बिलोंग कर रहा है, क्लियरली E2, E3, E4 टिल अप टू En किसी को बिलोंग नहीं कर रहा, बिकॉज ऑल दीज आर डिसजॉइंट। नाउ जस्ट सी फ्रॉम दिस साइड, अगर आपका x E1 को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, A1 करेक्टरिस्टिक ओवर E1, A2 करेक्टरिस्टिक ओवर E2, A3 करेक्टरिस्टिक ओवर E3 एंड सो ऑन AN करेक्टरिस्टिक ओवर EN। अगर आपका x E1 को बिलोंग कर रहा है तो इस फंक्शन की वैल्यू आ जानी है 1 और बाकी सभी की आएगी 0। तो आपको क्या मिला, A1 इंटू 1 A1, यही वैल्यू आ गई। So we can express simple function in the terms of characteristic function. This point is clear? Clear है ये point? मैम फिर हमें सम की क्या जरूरत पड़ी? जैसे हमने ऊपर fx इज इक्वल्स टू ai फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ei लिखा था, ऐसे ही ai इंटू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ei लिख देते। क्यों? मैम सम, एक टाइम पे तो एक ही सेटिस्फाई होगा ना। इसमें हम ये चीज नहीं ना, इसमें तो ये कंडीशन लिख रहे हैं फॉर ऑल एक्स आई, यहाँ पे नहीं ना डाली, वो फॉर ऑल एक्स आई ई आई बिलोंग कर रहे हैं, वो हमने समेशन में कवर कर लिया। इस अच्छा फंक्शन की वैल्यू ने 1 आना है या 0 आना है। अच्छा गेटिंग माय पॉइंट? या तो इसने 1 आना है या 0 आना है। यस हमने मैम। इसमें कंसिडर तो किए नहीं फॉर ऑल आई। मान लो मेरा x जो है वो E2 को बिलोंग कर रहा है और आपने तो ओनली AI इंटू करेक्टरिस्टिक EI लिखा है, यहाँ पे अब फॉर ऑल एक्स आई तो लिखा नहीं हुआ, तो कौन से वाले आई को बिलोंग करेगा? उसी चीज को हटाने के लिए फॉर ऑल एक्स आई बिलोंगिंग टू आई हमने समेशन डाल दिया ना। अब समेशन से भी हमें वही चीज मिल रही है। अब अगर आपका x E2 को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इस वैल्यू ने 1 बनना है, रेस्ट ऑल ने 0 बन जाना है, अपने आप ही हट जाएंगे, ओनली A2 बचेगा। यस मैम। So we can express any simple function in the terms of characteristic function। और देखो दूसरी चीज, every simple function is always measurable। जैसे स्टेप फंक्शन हमेशा मेजरेबल था, वैसे सिंपल फंक्शन भी ऑलवेज मेजरेबल होगा, क्योंकि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की टर्म में। और अभी हम थ्योरम करके आ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो मेजरेबल होगा जिस सेट पे ये डिफाइन हो रहा है, अगर वो मेजरेबल है तो ये भी मेजरेबल है। ऑल दीज सेट्स आर मेजरेबल। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो हर एक चीज आपके पास मेजरेबल आ गई। ओके, तो इसलिए ये फंक्शन क्या बनेगा, मेजरेबल फंक्शन बन जाएगा। सो सिंपल फंक्शन इज ऑलवेज मेजरेबल। दिस पॉइंट इज क्लियर? सो यू कैन राइट डाउन एज अ रिमार्क that every simple function is measurable। सो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो जरूरी नहीं है कि आपका मेजरेबल हो, वो डिपेंड करेगा जिस सेट पे हम डिफाइन कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, उससे भी मेजरेबल होना चाहिए। बट स्टेप फंक्शन और सिंपल फंक्शन दे आर ऑलवेज मेजरेबल, क्योंकि उनकी डोमेन सेट हमेशा मेजरेबल होगी। ये जो पार्टीशंस किए ये मेजरेबल होने चाहिए। दिस पॉइंट इज क्लियर? क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. So every step function, every simple function, they are always measurable। Moreover, the linear combination of simple function is also measurable। वो भी measurable आएगा आपके पास। How much time left? कितना टाइम है? मैम 4 minutes रहते हैं। Okay, 12:10 पे है finish। यस मैम। So we will continue on the next lecture। So next time करेंगे इसको आगे, ठीक है बच्चे? यहाँ तक आप लोग करके आना। Okay, ma'am. Okay, Yes, bye ma'am. bye everyone। Thank you, ma'am. Okay, bye। थैंक यू मैम। Okay, welcome बच्चे।